Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, we have completed almost all the coursework, whatever the outline we had prepared for you, and now the last 3 lectures will be on case studies and some IT essential tips regarding the operating system, usage and maintenance and operation. So today I would like to talk about the Windows operating systems, and you know that one of the version of the Windows is the Windows Vista, and this is your chapter number 11. In fact, I will also be talking about the Unix or the Linux in the next lecture. So let us start with the introduction to Windows with reference to whatever we have studied in the complete course. Okay, there are few concepts that I might have not discussed that. So, but you will find most of the concepts which are given in this particular case studies with reference to the Windows Vista, we have studied it. Despite of the all-out effort that I made to explain all the concepts, there are quite a few terminologies which are operating system platform dependent. कि विंडोज़ जो है किसी भी टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं और यूनिक्स में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट बुक्स में कैसे, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट वे है और वर्ड्स हैं थोड़े से, तो आई एम श्योर कि आपको परेशानी नहीं होगी. तो लेट अस स्टार्ट विद द history first. So this is the synopsis. So we'll be talking about the history, then programming Windows Vista, operating system structure, process and thread management, thread scheduling, memory management, input output, file system, security. Security is a topic that I unfortunately could not cover in the main outline, but I'll just give you a few tips regarding the security system used by the Windows environment. Then inter-process communication. Although this particular lecture, it's a very optimistic course outline that I have prepared for this particular lecture, but I'll quickly go through that this particular slides and the concepts, considering that we have spent quite a good time in discussing these technical details. और अगर इसमें कुछ slides रह जाएंगी तो I'm sure कि आप उसको खुद से पढ़ने के बाद समझ सकते हैं. ठीक है, तो क्विकली ट्राई करते हैं कि सारे ही कवर कर लें. हिस्ट्री आपको मैंने बताया था कि 1981 में जब IBM PC लॉन्च हुआ तो कैसे DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने. फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया 2.0 DOS 3.0. फिर 1990 में फर्स्ट ग्राफिकल एनवायरनमेंट आई, तो देयर वर टेंस ऑफ मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन 2 years टाइम एंड इट वाज विंडोज 3.0. फिर DOS का नया एडवांस वर्जन आया, फिर इसके पैचअप हुआ विंडोज 3.1 के साथ, दोनों को कंबाइन करके विंडोज 3.1 आई. देन 1993 में जो विंडोज 3.1 जो थी उसका एंटी वर्जन आया, जो कि हम आप भी आज बहुत ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे. एंटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी. एंड देन 1996 में 4.0 आया, फिर 98 में विंडोज़ 98, और फिर 2000 में डॉस का जो लास्ट वर्जन आया वो डॉस 8.0 था. और यहाँ पर विंडोज़ ME जो है वो भी लॉन्च हुई, जो कि थोड़ा सा एक ब्रिज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए थे जो कि 2000 के अंदर लोगों को पसंद नहीं आए या अप्रिशिएट नहीं हुए, या उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए बैकअप वर्जन फौरी तौर पर आप देखें 2000 में ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं. सो आप देख रहे हैं कि इसके बाद XP आई और फिर विंडोज विस्टा 2006, इसके बाद फिर 2008 है जो उसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन क्योंकि हम आज विंडोज विस्टा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड. दिस इज ऑल द ब्रीफ हिस्ट्री एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस ब्रीफ हिस्ट्री व्हाइल स्टडीइंग दैट द कोर्स. और जो चीज़ देखने वाली है कि 95 में आपका जो विंडोज 95 आई है उसके साथ
आप देख रहे हैं कि 32 बिट एड्रेसिंग, आल्दो के 3.1 NT में भी 32 बिट एड्रेसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये इट वाज वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी उसके अंदर, जबकि ये जो था ये कंप्लीट आगे जो है फॉरवर्ड स्टेप था एक, जो कि उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। और इट सिमुलेट्स डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर थ्रू API, और API कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। ओके, सो मैं ख्याल है कि इसको स्किप करते हैं, ये हिस्ट्री है, आप इसको काइंडली देख लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि विंडोज NT जो है न्यू टेक्नोलॉजी दैट वाज बेस्ड अपॉन अ वेरी वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम VMS। और ये जो VMS ऑपरेटिंग सिस्टम था ये वैक्स वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन एक मशीन थी जो कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाई थी। तो I have a privileged that when I started my professional career, I worked on the VAX 780 using VAX VMS operating system. So it was a very very powerful operating system that introduced the virtual memory, क्योंकि real memory का जो size था वो बढ़ नहीं पा रहा था, तो वो उस ज़माने में the computer we used to have VAX 7 used to have 1 MB memory maximum, तो फिर वो virtual memory का जो concept था that was introduced, but still it is in use जो virtual memory है, लेकिन अब इसके बहुत advanced versions जो हैं they are in operation. So जो digital equipment corporation है that were the main player on those days were producing the mini computers, but later on the digital equipment corporation was sold out and it was procured by the Compaq, जो कि एक और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर में एक और प्लेयर भी थे, एंड लेटर ऑन द Compaq sold out the rights of DEC as well as Compaq to HP। Hewlett Packard जो है उन्होंने इन दोनों को परचेज कर लिया, रादर Compaq को परचेज किया और Compaq ने DEC को परचेज किया था। So NT new technology was also jointly developed as ऑपरेटिंग सिस्टम 2 फॉर IBM, लेकिन वो कुछ अरसा ही रहा, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो गया। The Win32 API that allows the programmer to run on almost all versions of Windows। अगर आप ये देखें तो सारी की सारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये प्रोवाइड की जा रही है Win32 जो सिस्टम है, इसको ये आपको प्रोवाइड की गई Win32 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो मैंने आपको बताया था ना, API stands for एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। So this Win32 application programs were provided to the developers, and then the developers could be able to develop a new program, and they were still able to use the development that were done in different platforms like Windows 3.0 and 3.1 and Windows 95, 98 and even Windows NT 2000, XP and Vista. So Win32 is basically a library, and this is an application API, and जो कि facilitate करती है to the developers and the programmer to develop the new software and new development in, and also you can just directly interact and interface with the operating system. अगली slide में I'll be explaining that as well. Then there were two types of operating system, क्योंकि अब नेट जो है वो भी आ चुका था और बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा था, तो देयर वाज अ नीड ऑफ द टाइम कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आए दैट शुड कवर अप द क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। यानी कि दो तरह की एनवायरनमेंट थी, एक तो ये कि यू आर यूजिंग अ मशीन इंडिपेंडेंटली, नॉट कनेक्टेड विद अदर मशीन्स, और अगर कनेक्ट भी होती थी तो नोड टू नोड बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट
सबमिट करते थे। तो उसके लिए आप कोई सा भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने अभी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विंडोज NT 2000 XP और विस्टा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन्हीं के एडवांस वर्जन्स हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज NT सर्वर है, विंडोज 2000 सर्वर, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर्स। सो ये बेसिकली आपके सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। तो देन दे फैसिलिटेट द यूजर टू द क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू द सर्वर एंड देन दे कैन जस्ट शेयर द रिसोर्सेज व्हाटएवर दे हैव इट एट द सर्वर लेवल। सो द कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो बताने का मकसद ये है कि स्प्लिट कॉन्सेप्ट आया क्लाइंट एंड सर्वर का, और इसको बड़े अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और उन्होंने क्लाइंट सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। Then size of the windows, just to give you an idea कि लिनक्स एक पैरेलल में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, इट इज़ अवेलेबल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोस्ट प्रोबेबली लिनक्स इंस्टेड ऑफ यूनिक्स फॉर दी सम ऑब्वियस रीजंस जो मैं आपको अगले लेक्चर में ही बताऊंगा। सो अगर हम उसको लिनक्स के साथ कंपेयर करें विस्टा को, विंडोज विस्टा को, तो CPU शेड्यूलिंग जो है that comprises 50,000 lines of code as compared to Windows which has 75,000. So that shows that it is more complex and powerful and more facilitated. Then IO infrastructure के लिए जो coding है वो 45,000 versus 60,000, और जो सबसे ज़्यादा tremendous improvement है जो facilitation है वो जो कि Windows को पावर एज हासिल हो गया है ओवर लिनक्स, वो है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद होगा व्हेन आई टॉट यू दी वर्चुअल मेमोरी, जब मेमोरी मैनेजमेंट का मैंने लेसन आपको टीच किया था तो आपको अंदाज़ा हो गया था कि पेंटियम बेस्ड जो है, पेंटियम के ऊपर जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है वो बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों को कंबाइन करके और फिर सम एडवांस फीचर्स के साथ उसको ऐड अप करके उसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो we can just to give you a comparison between the Linux versus Windows Vista, the slide जो है you can just go through that. Let's talk about the programming windows of Vista. Means ke it is organized in the form of a stack of different software, और अगर आप देखें तो इसमें एक sequence है, applets है for Win32 executable, और I have been introducing Win32 system calls and उसकी APIs वगैरह मैं time to time lectures में discuss करता रहा हूँ, but today I will certainly list down again once again for you, and beneath that there is a graphical user interface using the dynamic link libraries। जो DLL होता है ना, इसको कहते हैं dynamic link libraries। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया कि dynamic link libraries का क्या काम होता है, कैसे information को sharing की जाती है among the processes। Then this dynamic libraries RPC.dll भी है, अब इस वक्त I'm not going in the detail। So subsystem of API kernel 32, और अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पैरेलल के अंदर जो विंडोज़ ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो दे ऑल रन इन दी यूज़र मोड, यहाँ से यहाँ तक ये तमाम फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई है यूज़र मोड में। यही वजह है, यू कैन सी डैट के नेटिव NT APIs जो हैं C and C++ कंपाइलर है, और रन टाइम लाइब्रेरीज हैं, दैट इज़ NT डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज हैं, दे आर ऑल provided in the user space to facilitate the user to develop their own application and their own code. But beneath that, the most important is NT OS kernel layer। अभी इसके थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और फिर इसके नीचे कर्नल का आर्किटेक्चर है, NT OS एग्जीक्यूटिव लेयर, और सबसे नीचे है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक आपको लफ्ज जगह जगह नजर आएगा HAL, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है कि एक ही जैसे जो आपके डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट स्पेक्स होते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एक सिमिलर इंटरफेस, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, सो डैट द लेयर अबव दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज और शुड नॉट बी क्या कह सकते हैं कि शुड बी फैसिलिटेटेड
wanted to communicate with the hardware devices, और अगर वो complexities रहें और उसमें variations रहें तो unnecessarily बहुत ज़्यादा effort करनी पड़ेगी developers को कि variety of, यानी कि अगर CPU ही है और अगर CPU जो है वो आपका उसका architecture slightly different है तो फिर उसके लिए आपको different तरीके से handle करना है, तो उसकी बजाय एक hardware abstraction layer होती है जो कि complexities को hide करती है. So हमने देखा कि टॉप के ऊपर प्रोग्रामिंग विंडोज है, उसके नीचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, देन वी हैव अ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, और फिर NTOS. NT operating system is the kernel mode program which provides the system call interface to Microsoft programmers, not open to public. देखने वाली बात यह है कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल चीज़ है वो ये नहीं है, क्योंकि ये कर्नल में और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं सिर्फ उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है. लेकिन कर्नल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो आप देखें तो यहाँ पर आपको APIs दी हुई हैं, आपको लाइब्रेरीज दी हुई हैं और आपको इंटरफेस दिया हुआ है. ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. The native NT application programmer interface जो है it is called basically the object, और जो object की categories हैं वो हम different types of object use करते हैं. For example for the synchronization, और synchronization के लिए अगर आपको याद होगा कि process की synchronization के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, अब मतलब डिस्कस किया है बड़ी डिटेल के साथ. उसमें सेमाफोर्स हैं, म्यूटेक्स हैं, इवेंट्स हैं, मॉनिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड IO कंप्लीशन क्यूज जो हैं हमने इनके बारे में बात की. तो दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड कॉमन कैटेगरीज फॉर द कर्नल मोड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू जो है कर्नल डिफरेंट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एक्सटेंड करता है. देन वी हैव गॉट द IO ऑब्जेक्ट सच as files, devices, drivers, timers, इनको हम ये भी objects हैं, और आपको पता है कि इसमें बहुत सारी abstraction involve है regarding the files और devices and drivers के दरमियान, जो हम IO management में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं. Then the program object है which has jobs, processes, threads and sections. इसमें एक और नई चीज़ आएगी which is called fiber, जो कि टर्मिनोलॉजी है, विंडोज़ यूज़ करता है, विंडोज़ NT यूज़ करता है, विस्टा यूज़ करता है, तो उसका भी मैं अभी जिक्र करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. एंड देन the object of Win32 GUI. So these are the desktop application callbacks. मैंने आपको बताया कि कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से आप ये डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो थोड़ा सा इसको देखते हैं इसके फर्दर डिटेल में. ये है Windows NT एप्लीकेशन. I think I will be skipping that, but just after explaining कि NT create a process. ठीक है, अगर आपको याद होगा यूनिक्स में प्रोसेस जो है, जब आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, मैंने आपको एक कमांड बताई थी. कौन सी कमांड थी? फोक से आप क्रिएट करते हैं चाइल्ड प्रोसेस या सब प्रोसेस. और मैंने आपको बताया था कि Win32 में आपके पास जो एप्लीकेशन है वो क्या है, बेसिकली वो मैंने आपको बताई थी क्रिएट प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे है NT क्रिएट प्रोसेस. डिफरेंस मैंने आपको बताया कि अब हम लाइब्रेरीज को यूज करेंगे इन सिस्टम कॉल्स को यूज करने के लिए. अगली स्लाइड में आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, बट बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरफेस. The interface to use the system call of create a process, create a thread, and then allocate virtual memory, view of a section, and map view of the section, virtual memory read, virtual memory write, create a file, and duplicate object जो है. These are the examples of the native NT API calls that use handlers to manipulate object across process boundaries. ये जो सेंटेंस है अभी आपको समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है. एक्चुअली here you should be able to understand that. वो क्या है? The Win32 application programming interface है. Basically, we use Win32 API interface for developing new applications. This Win32 API is fully documented and disclosed to the public, जिसने के आपने डेवलपमेंट करनी है. ये NTOS की तरह या उसकी जो सिस्टम कॉल्स है NT की, उसकी तरह जो है इसको हाइड नहीं किया गया. ठीक है, इवन जो NT की सिस्टम कॉल्स हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी, उसको भी अगर आपने एक्सेस करना है तो आप इसको Win32 APIs के थ्रू एक्सेस करेंगे.
आई एम श्योर कि इससे आपको एक बात याद आई होगी कि जब मैंने आपको बताया था कि आप रीड सिस्टम कॉल करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि रीड सिस्टम कॉल के लिए आप एक रीड जो है वो लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल करते हैं, याद है? सो रीड लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल या राइट लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल क्या करता था, आपके यूजर प्रोसेस को फैसिलिटेट करता था लाइब्रेरी प्रोसीजर से। और ये जो लाइब्रेरी प्रोसीजर है, इस लाइब्रेरी प्रोसीजर को प्रिसाइजली पता है कि सिस्टम कॉल जो है वो आपने कैसे करनी है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ जो लाइब्रेरी प्रोसीजर्स हैं बेसिकली वो आपके Win32 APIs हैं, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। तो आप अपने प्रोग्राम में जिस तरह लाइब्रेरी प्रोसीजर कॉल करते थे Win32 API कॉल करेंगे और फिर ये Win32 API जो है आपको फैसिलिटेट करेगा टू कॉल टू दी एंटी सिस्टम कॉल्स को कर्नल के अंदर जाने के लिए, जो मैंने आपको बताया जिसकी आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। सो दी एपीआई इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोसीजर दैट आइदर रैप मीन यूज एंड कॉल समहाउ द नेटिव एंटी सिस्टम कॉल। बात समझ में आई? जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद दिलाने की कि ये वो लाइब्रेरी प्रोसीजर्स हैं जो या तो रैप करते हैं आपके सिस्टम कॉल को, जिस तरह लाइब्रेरी प्रोसीजर करता था टू मेक अ कॉल टू द नेटिव एंटी सिस्टम कॉल्स और डू द वर्क बाय देमसेल्फ। अगर तो कोई सिंपल एडजस्टमेंट है, जिस तरह लाइब्रेरी प्रोसीजर में बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो खुद ही प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दे देते हैं आपकी फैसिलिटेशन के लिए। आपको नहीं पता होता कि वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या आपकी रिक्वायरमेंट को रैप करके पैकिंग करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाकर एपीआई को कॉल करेंगे, आगे सिस्टम की कर्नल की सर्विसेज को कॉल करेंगे। तो यही काम जो है ये यहाँ पे करते हैं। सो टू स्पेशल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आर आल्सो प्रोवाइडेड। What are those special environment? वो है WOW32 and WOW64। WOW32 क्या है? Windows on Windows है ना, इंटरेस्टिंग। Windows on Windows which is used on 32-bit x86 system call to run 16-bit Windows 3.0 3.1 for the backward compatibility। आपकी बैकवर्ड एप्लीकेशन के साथ compatibility, अगर आपने उनकी जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी that has been developed in Windows 3.0 and 3.1, so one organization might have spent millions of dollars in developing that particular applications, so they will not like कि अब आप नए सिरे से उनको खर्चा करवाएं। तो उसकी अगर कोई मेंटेनेंस करनी है, उसमें कोई ऐड ऑन करना है, तो उसको आप फैसिलिटेट करेंगे कि 32 बिट से अब आपने जाना है पीछे 16 बिट के लिए, उसके लिए आप यूज करेंगे WOW32, जो कि आपको मैप कराएगा आपकी सिस्टम कॉल्स जो हैं ये एन पैरामीटर बिटवीन द 16 बिट एंड 32 बिट। तो ये तो था बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। इसी तरह अगर 32 बिट में रहते हुए आपने 64 बिट पे काम करना है तो यू कैन यूज WOW64 दैट डज द सेम थिंग फॉर 32 बिट एप्लीकेशन टू वर्क ऑन x64 सिस्टम जाके, जिसमें रजिस्टर्स भी आपके 64 बिट के हैं, जिसमें आपका वर्ड साइज भी 64 बिट का है। तो अब ये फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, तो आपका 32 बिट के अंदर डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है और अब आप उसको 64 बिट के साथ कंपैटिबल करना चाहते हैं या उसके साथ मिक्स एंड मैच करके यूज करना चाहते हैं। सो प्रीवियसली देयर वर OS2 एंड POSIX एनवायरनमेंट बट नॉट एनी मोर। मैंने आपको बताया था ना कि IBM ने OS2 का भी एक अटेम्प्ट की थी डेवलप करने के लिए। OS2 was the operating system developed for the especially for the specialized IBM personal computers, लेकिन ये बहुत जल्दी obsolete हो गया। इसी तरह POSIX जो है across the platform जाने की कोशिश की गई, for example for the Unix वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके भी है, लेकिन फिर वो POSIX की compatibility Linux के साथ और उस environment के साथ, क्योंकि open source के साथ वो उस एक बिल्कुल ही different direction है जिसकी हम बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो यहाँ पर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। सो आई एम श्योर कि अब आपको Win32 का पर्पस और उसका यूजेज समझ में आ गया होगा। These are the Win32 वर्सेस, यानी कि जब आप कहते हैं ना क्रिएट प्रोसेस, ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको कराई थी क्रिएट प्रोसेस की। आप इस लाइब्रेरी प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये आगे कॉल किसको करेगा? एंटी क्रिएट प्रोसेस। इसी तरह अगर आप करेंगे क्रिएट सीमाफोर तो एंटी क्रिएट सीमाफोर। इसी तरीके से आई एम श्योर के आप ये सारी जो है
इसको एक दफ़ा जस्ट ग्लांस कर लीजिएगा, कोई रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर यहाँ पर क्लोज हैंडलर है तो एंटी क्लोज है, और कैसे ये आपस में रैप या मैप होता है फ्रॉम विंडोज़ 32 जो है। फ़र्क सिर्फ समझ में आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाई वी यूज़ दैट, why we are not allowed to directly use native anti-API call। इसका जवाब अगर आप दे देते तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया था जब मैंने आपको प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाया था। भारत मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि जब आप कोई सिस्टम कॉल करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, और वो प्रोटोकॉल, वो प्रोसीजर जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल कोर्ट में जाके अपना केस आप खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करते हैं, और वो प्रोफेशनल लॉयर जो है उसको पता होता है सारे प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स उसको पता है, वो आपका केस जाकर प्रेजेंट करता है। तो बस यहाँ पर आप ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो ये पर्पस है। Win32 आप हैं और जनाब आप इसको नहीं, आप इधर नहीं है, आप इधर हैं जो अपना प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ये आपने लॉयर हायर किया, ये आपका वकील है जो कि आपके केस को प्रेजेंट करता है कर्नल को, ठीक। तो ये जो कुछ आप डेवलप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now, the Windows registry, this is something again a very good concept कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप रजिस्ट्री यूज करते हैं, जिसमें कि बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरामीटर्स क्या रखे हुए हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने उसको कैसे सेटअप किया हुआ है। तो उसके लिए भी आप के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हाइव। हाइव क्या है, वॉल्यूम्स हैं। तो दी बेसिकली द रजिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेपरेट वॉल्यूम्स कॉल्ड hives. So when the system is booted, the system hive is loaded into the memory. अब हमें इसकी एक्सेस जो है हमने अगर करनी है तो सिस्टम पे अगर ये माउंट हुआ है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या यूज करता है, कर्नल ये HKLM और ये जो आगे सिस्टम का TEM है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये इसके साथ अब आप देखें हर जगह हार्डवेयर के साथ HKML लगा दिया और इसके साथ HKML BCD HKL, ये SAM जो है, SAM क्या है, लोकल यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन, बूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डेटाबेस एंड डिफॉल्ट हाइव ऑफ द टू यूजर्स। हाइव क्या है कि डिफॉल्ट यूजर्स के डिफॉल्ट्स क्या है, उसको क्या कितना कोटा है, उसका कितनी प्रिविलेज है, उसकी क्या उसके कॉपीराइट्स हैं यूजर के। सो द रजिस्ट्री हाइव्स इन विंडोज विस्टा इज कॉल्ड HKLM इन शॉर्ट हैंड फॉर H की लोकल मशीन, ठीक है। एंड रजिस्ट्री इज a special file system to record the details of the system configuration। तो इस रजिस्ट्री को जब कर्नल रेफर करता है तो कर्नल बेसिकली जिन जिन फाइल्स को रेफर करता है वो फाइल्स जो हैं वो उनके ये नाम हैं। जबकि हम अगर पुराना अगर प्रोफेशनल है आईटी के और हम काम कर रहे हैं विंडोज़ में, तो हमारा जो आइडिया है वो हम सिस्टम, हार्डवेयर, BCD हम लोग इनसे वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दिस इज दी ये H की लोकल मशीन है। ओके, सो अब Win32 API जो है विंडोज रजिस्ट्री के लिए हमने अगर जाना है तो Win32 API के जरिए, अगर आप प्रोग्राम के थ्रू ये सारा करना चाह रहे हैं तो Win32 जो है वो आपको वही काम करेगी जो मैंने अभी आपको पिछली से पिछली स्लाइड में बताया। रजिस्ट्री क्रिएट की एंड रजिस्ट्री डिलीट और ये सारे काम जो है ना, आप इनको यूज करते हुए, लाइब्रेरी प्रोसीजर्स को यूज करते हुए आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द Win32 एप्लीकेशन कॉल्स फॉर यूजिंग द रजिस्ट्री। बिफोर द रजिस्ट्री, older Windows version kept configuration information in INI files। हमारे ज़माने में जब ये नया नया विंडोज़ आया था तो हम कॉन्फ़िगरेशन, जब कोई ट्रबल शूटिंग करते थे और किसी फॉल्ट को देखते थे, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर आपने उसको सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया, अब आप उसको री इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे दोबारा की मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है कि शायद आप डुप्लीकेट कॉपी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते थे कि INI फाइल को ओपन करके उसको डिलीट करते थे पहले, ताकि अब जब हम उसको री इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम शुड अज्यूम कि हम फ्रेश
सिस्टम के ऊपर फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम .ini को एडिट किया करते थे। और इसके बाद के वर्जन में regist regedit ये कमांड है जिसकी मदद से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट किया जाता है। दिस इज अ प्रोग्राम टू इंस्पेक्ट एंड मॉडिफाई द रजिस्ट्री, बट यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने if you do not have sufficient knowledge and understanding, so don't make an attempt to open up and play with the registry files. That will corrupt and destroy your operating system, जिसको कि आप recover भी नहीं कर पाएंगे और आपका बहुत सा डेटा जो है वो loss हो जाएगा। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लेयर। अब इसकी हम बात कर चुके हैं, यूजर मोड की, एंटॉस की भी बात हमने की, ड्राइवर्स की भी बात हमने की, और यहाँ पे हमने हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर। अब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अगर हम देखें कि जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर है ये जस्ट ओवर दी हार्डवेयर है, CPU, MMU, इंटरप्ट कंट्रोलर, मेमोरी, फिजिकल डिवाइस, बायोस, ये डिफरेंट हो सकते हैं, इनके डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट करना है तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो स्टैक है, ये सारे का सारा जो लाइब्रेरी स्टैक है, ऊपर यूज़र इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तो यहाँ से यहाँ जाने में यूज़र को ये एक ब्रिज क्रॉस करना है, तो यहाँ पे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर जो है वो फैसिलिटेट करती है यूज़र को। तो अगर हम देखना चाहें तो सिस्टम लाइब्रेरी टॉप पे है, ये एंटॉस कर्नल लेयर है। मैं आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ सो डैट के मैं ये कंप्लीट कर सकूँ जो तमाम चीज़ें हैं, बट आप अगर इसको रीड इट आउट करें तो दैट्स ओके। फिर एंटॉस की एक कर्नल लेयर है, फिर एंटॉस की एक एग्जेक्टिव लेयर है। ये देखिए यहाँ पे ये एंटॉस है, कहाँ गया अभी एंटॉस, ये रहा एंटॉस एग्जेक्टिव लेयर है ये एंटॉस की, जबकि यहाँ पर टॉप के ऊपर एंटॉस की कर्नल, ये दो लेयर्स आपको नजर आ रही हैं एंटॉस की, ठीक है। तो ये सारे का सारा मिलके भी एंटॉस की एग्जेक्टिव लेयर बनती है और वही एंटॉस की लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव लेयर। दैट कंटेन द सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर द वर्चुअल मेमोरी, कैश एंड IO। जबकि टॉप लेयर क्या करती है, थ्रेड शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ट्रैप हैंडलर्स, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी हुई हैं, इससे मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ कि आपने सिर्फ रीड आउट करना है। हाँ, ये आपके लिए नहीं है जो मैं कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर। इट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर, ड्राइव्स device component on main board. Abstracts hardware specifies the difference between system of the same architecture, ठीक है, difference in the system of the same architecture, ठीक है, such as different CPUs जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद है आपके डिवाइस ड्राइवर्स which are used for any kernel mode activities which are not a part of CentOS or HAL। HAL क्या है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन वेयर, सच एज फाइल सिस्टम, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, और ये वो चीज़ें हैं। अगर आप दोबारा पीछे जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी एक्सेसिंग है जो आप यूज़र को प्रोवाइड करके दे रहे हैं, फाइल सिस्टम वगैरह, और इसमें मुझे थोड़ा सा देखना होगा कि वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस फाइल सिस्टम, वॉल्यूम मैनेजर, TCP/IP स्टैक, नेट इंटरफेस, ग्राफिक ड्राइव्स। तो ये आप यहाँ से इसके थ्रू आप आते हैं, ठीक है। और यही बात हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज फॉर एनी कर्नल मोड एक्टिविटीज़ सच एज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंटॉस। जो है अगर आप देखें तो ये एंटॉस का पार्ट नहीं है, ये बॉक्स अलग से है, ओके। ये एक बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन दीज टू लेयर्स, ओके। बूटिंग विंडोज़ विस्टा, मैंने बूटिंग का आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको मैंने मुख्तलिफ जगह पर बताया था, सिर्फ आप इसको काइंडली रीड आउट करवें। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि आपका जो लैपटॉप है ना, जब उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो आपने देखा कि पावर सेविंग के लिए सिस्टम क्या करता है, हाइबरनेट कर देता है। हाइबरनेट करने का मतलब है कि जो कुछ भी मेमोरी में है वो हार्ड डिस्क के ऊपर जाके सेव कर देगा और बहुत ज़्यादा पावर को बचा
लेगा और हाइबरनेट के अंदर चला जाएगा, मिनिमम पावर कंजम्पशन से अपने आप को जिंदा रखता है, सरवाइव करता है। और दूसरा मोड है उसका स्टैंड बाय मोड। सो अगर आप बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पर प्रोग्राम जब उस सिस्टम को बूट करने लगता है और अगर सिस्टम इज हाइबरनेटेड और स्टैंड बाय मोड, तो फिर ये जो है विन resume.exe जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर हाइबरनेट और उस मोड में नहीं है बल्कि आपने बटन प्रेस करके उसको ऑन किया है, या फर्स्ट टाइम आप उसको ऑन कर रहे हैं या पावर ऑफ करके उसको ऑन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में winload.exe फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। और ये प्रोग्राम जो है ये एंटॉस HAL ये जो चीज़ें हैं इन सबको वो बारी बारी लोड करता है। ओके, प्रोसेस एंड थ्रेड्स मैनेजमेंट। Processes are the containers for the thread. Process environment block PEB। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विंडोज विस्टा में ये है कि आपका जो प्रोसेस है ना वो बेसिकली एक कंटेनर है। That container contain the resources, और जो उसमें एक मैंने लफ्ज यूज किया था पीसी के लिए, प्रोग्राम काउंटर के लिए, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन समथिंग लाइक दैट, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है कौन सा वर्ड था वो, जिसमें वो आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को वन आफ्टर दी अदर एग्जीक्यूट करता जाता है। थ्रेड ऑफ कंट्रोल जो था वो उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस था। तो इसमें विंडोज एनवायरनमेंट में क्या है कि जो आपका प्रोसेस है दैट इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स ऑल द रिसोर्सेज, और उसमें जो एग्जीक्यूटेबल यूनिट्स हैं वो है थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल, और उसको हम कहते हैं थ्रेड्स। सो बेसिक शेड्यूलिंग यूनिट जो है विंडोज में वो प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं दोज आर बीइंग scheduled for execution. So normally execution is done in the user mode and thread environment block is called TEB. और ये जो थ्रेड की शेड्यूलिंग होती है ये कर्नल में होती है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड अ जॉब। जॉब का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू ग्रुप डिफरेंट प्रोसेसेस टुगेदर एज ए यूनिट। सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर सपोज्ड टू शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज टुगेदर आर पुट टुगेदर एज ए जॉब। और फिर आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं। सो देन यू मैनेज रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द प्रोसेसेस, दैट इज द CPU, memory and other consumption, memory consumption or other consumption of the IO devices. So when you terminate a job, all the processes which are the part of the job, all the processes are terminated at once. और ये कैसे होता है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा फाइबर को भी एक्सप्लेन कर दें। What is a fiber? It is a unit of execution like thread, but these threads are fibers are created by the thread create करते हैं। So scheduled by the thread that creates them, not microkernel। microkernel जो है वो उसको नहीं बनाता बल्कि ये threads जो हैं वो बनाते हैं। So thread must convert itself into a fiber to create a fiber। ओके और एडवांटेज इज द फास्ट स्विचिंग। अगर तो थ्रेड अब एग्जीक्यूट करता चला जाएगा तो फिर उसमें क्या है कि वो ट्रैप अकर होगा क्योंकि शेड्यूलिंग जो है वो कर्नल में होती है। लेकिन जब वो आप उसको फाइबर बनाते हैं तो फाइबर का कंट्रोल थ्रेड के पास होता है और फिर स्विचिंग जो है इट जस्ट सेव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन की मदद से वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है फ्रॉम वन फाइबर टू अदर फाइबर। लेकिन ये जो फाइबर्स हैं और ये जो जॉब्स हैं पीछे जो है दे आर वेरी रेयर वी यूज्ड रेयर वी का मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा कहीं इंशाल्लाह। ओके, प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन। Threads are organized in the form of thread pools. So worker thread that sleep waiting for the work items. Each process gets a thread pool that is useful in certain situations. So हर प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स को क्रिएट किया जाता है फॉर हैंडलिंग मल्टीपल टास्क। फॉर एग्जांपल फुलफिलिंग अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो आप सेमाफोर को आप डाउन कर देते हैं या प्रोसेस जो है वो एक मैसेज को रीड करने की कोशिश करता है जो अभी नहीं आता तो डाउन हो जाता है। वंस द मैसेज इज देयर तो वो लाइव हो जाता है वो थ्रेड जो है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। एंड नेक्स्ट इज द एसिंक्रोनस IO। आई एम श्योर कि अगर आपको याद है एसिंक्रोनस IO क्या है कि जो कि इंटरप्ट के थ्रू आप IO करते हैं, जहाँ पे जब कोई डिवाइस
कंट्रोलर जो है जब किसी डेटा को रीड करके प्रोसेस को प्रोवाइड करना चाहता है तो उसको इंटरप्ट करता है, और आप प्रोग्राम्ड आईओ मोड में हैं या आप उसको इंटरप्ट मोड के अंदर उसको रीड राइट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको अटेंशन चाहिए। तो उसके लिए ये थ्रेड्स बनाए हुए हैं, एसिंक्रोनस, ये मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं जो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स यहाँ पर बयान किए गए हैं। Combining several threads that sweep most of the time, obviously वो threads उस वक्त होते हैं जब एक इंटरप्ट आता है और वो जो थ्रेड ब्लॉक हुआ होता है वो अनब्लॉक होता है, और वो जैसे ही अनब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और स्टार्ट प्रोवाइडिंग दी सर्विस। सो द मेमोरी ओवरहेड एंड लेस कंट्रोल फॉर द प्रोग्रामर, अगर आप ये सारे का सारा काम जो है आप थ्रेड्स की मदद से कर रहे हैं। दिस इज द स्लाइड फॉर विच आई वॉज वेटिंग फॉर, और ये स्लाइड में अगर आप देखें सबसे ऊपर जॉब्स है जिसका हमने जिक्र किया, देन जॉब्स कंटेन्स प्रोसेसेस, ये जॉब नहीं जॉब्स हैं, ठीक है, तो दीज आर जॉब्स। तो जॉब्स कंटेन प्रोसेसेस, ये एक से ज़्यादा सेट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं दे बिलोंग्स टू अ जॉब। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि प्रोसेस सारे जॉब को ही बिलोंग करते हों, कुछ यहाँ पे ऐसे भी प्रोसेस होंगे जो कि इस जॉब को बिलोंग नहीं करते होंगे, ठीक है, यहाँ कहीं लिखा हुआ भी होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब प्रोसेसेस थ्रेड्स एंड फाइबर, jobs and fibers are optional, not all processes are in jobs or contain fiber। मैंने आपसे कहा था कि रेयरली यूज ये जॉब्स भी और ये फाइबर भी। तो बेसिकली होता क्या है विंडोज के अंदर, ये आपकी एंटिटी है, प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं, और थ्रेड कौन कौन से जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ओके, सो अब थ्रेड जो है वो एक फाइबर, मल्टीपल फाइबर्स क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड्स फॉर द एग्जीक्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि किसका क्या काम है, बेसिक कंपोनेंट यूज्ड बाय द सीपीयू एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इज जॉब फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट शेयर कोटा एंड लिमिट्स, रेयरली यूज्ड, ठीक। देन प्रोसेसेस और थ्रेड्स हैं, प्रोसेसेस आर द कंटेनर फॉर होल्डिंग रिसोर्सेज, जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, और थ्रेड्स आर द एंटिटी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और फाइबर आर लाइट वेट थ्रेड्स मैनेज एंटायरली इन द यूजर स्पेस, दे आर क्रिएटेड बाय द थ्रेड्स जो कि फाइबर को क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो दोनों लेयर्स हैं ये ज़रा कम कम ही यूज़ होती हैं, ज़्यादातर जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं। देन इज द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। आई थिंक थोड़ा सा अगर मैं इसको चाहूँ कि अगर ये आप इस स्लाइड्स को गौर से देखिएगा और आप इसको रीड आउट करने की कोशिश करें, बट स्टिल थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन भी करता जाऊँ। डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स, उसमें इवेंट ऑब्जेक्ट है, म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सेमाफोर ऑब्जेक्ट्स है, और एक आध ऑब्जेक्ट और भी है, ये वेटेबल टाइमर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन हर एक के यहाँ पर डिफाइंड है। सिग्नल्ड व्हेन इवेंट अकर्स, ये वही है, अगर आपको याद हो डाउन और अप वाला है। अब मुझे याद है कि मॉनिटर्स में मैंने आपको सिग्नल्स भी पढ़ाया था जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोसेस को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। अनसिग्नल्ड ऑपोजिट है, अगर ये अप है तो ये डाउन है, ओके। और आइदर वन अनसाइंड, आइदर व्हेन वन थ्रेड अवेकन्स और ऑल थ्रेड्स अवेकन, ये जनाब अनसाइंड है, मतलब ये कि जब ऑलरेडी थ्रेड्स रनिंग कंडीशन के अंदर हैं तो आप उसको अनसाइंड करते हैं, वही जो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 है और आप उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये इवेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो इवेंट के साथ, जब कोई इवेंट अगर होता है, इवेंट कौन सा हो सकता है कि आपके डिस्क ने डेटा प्रोवाइड कर दिया है, आपका नेटवर्क से कोई पैकेट रिसीव हो गया है, दूसरे कंप्यूटर से कोई मैसेज रिसीव हो गया है, दीज आर ऑल कार्ड इवेंट्स। एक इंटरप्ट अकर होना बाय इटसेल्फ इज कार्ड एन इवेंट। देन है डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स में है सेमाफोर ऑब्जेक्ट्स, और सेमाफोर ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो इट्स काउंटिंग सेमाफोर। अगर मैंने आपको बताया था सेमाफोर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है, आप उसको डाउन करते जाते हैं, जब उसकी वैल्यू 0 से डाउन करते हैं तब वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको याद होगा कि n मैसेजेस है और सेमाफोर से हम डाउन करते जा रहे थे, जब 0 से डाउन किया था तब वो आपका जो प्रोड्यूसर था वो ब्लॉक हो गया था। इसी तरह कंज्यूमर जो है जब उसने 0 को डाउन किया था तो कंज्यूमर ब्लॉक हो गया था, ठीक। तो सिमिलरली वो जो बात मैं अभी ऊपर कर रहा था, सिग्नल्ड व्हेन काउंट इज इक्वल टू काउंट इज ग्रेटर देन 0,
यानी कि वो जो आप डाउन करते जा रहे हैं, और अनसिग्नल्ड व्हेन काउंट इज इक्वल टू 0। तो वो स्पेसिफिक उस बाउंड्री की बात कर रहा है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो डिस्कार्ड सिग्नल्ड, और जब वो 0 को करेगा तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि टर्मिनोलॉजी जो विंडोज ने यूज की है उसको कहते हैं अनसिग्नल्ड। सो यू कैन बी एक्वायर्ड बाय मल्टीपल टाइम्स बाय द सेम थ्रेड। ये जो डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्वायर कर सकते हैं। वेटेबल टाइमर ऑब्जेक्ट है। सिग्नल्ड व्हेन टाइम इलैप्स, ये जो मैंने लास्ट लेक्चर्स आपको आईओ मैनेजमेंट का पढ़ाया था ये उससे रिलेटेड है। म्यूचुअल रीसेट वर्सेस ऑटो रीसेट जो है क्लॉक के, मैंने आपको बताए थे मल्टीपल टाइमर्स हैं और उसके बहुत सारे मेथड्स भी बताए थे आपको। सो सिंगल यूजर वर्सेस अ पीरियोडिक, वन टाइम आप उसको यूज करना चाह रहे हैं या उसको पीरियोडिकली आप इंटरप्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए आप वेटेबल टाइमर ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, यही चारों जो मैंने आपको बताए थे। एक इवेंट वाला, एसोसिएटेड इवेंट अकर्स, म्यूटेक्स जो है वो ओनर ऑफ द म्यूटेक्स, रिलीज द म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, किसी क्रिटिकल रीजन में एंटर होना और जब क्रिटिकल रीजन से बाहर आ जाना तो उसको रिलीज कर देना। सेमाफोर्स, काउंट राइजेस अबव 0 और जब 0 से नीचे हो तो वो ब्लॉक हो जाए। वेटेबल टाइमर स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ टाइम लैप्स्ड। ओके, आई होप कि ये टर्मिनोलॉजीज जो है हमें आती हैं और हमने पढ़ भी हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, कर्नल मोड लॉक्स है। जब कर्नल मोड के अंदर आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम यूज करते हैं लॉक जिसको कहते हैं स्पिन लॉक, और एक और कॉन्सेप्ट है क्यूड स्पिन लॉक। देखें, एक तो व्हेन आई टॉट यू दी सेमाफोर्स, और मैंने कहा था कि जब प्रोसेस जो है वो डाउन करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर 4 और 5 प्रोसेसेस ब्लॉक हुए हैं और जब आपने उसको अप करना है तो मैंने आपसे कहा था वन ऑफ द ब्लॉक प्रोसेस इज अप्ड रैंडमली, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है कि वाकई रैंडमली आप उसको अप करें प्रोसेस को। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो ब्लॉक करें ना उसको एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उसका रिकॉर्ड रखें कि जो प्रोसेस सबसे पहले ब्लॉक हुआ था वो सबसे पहले अनब्लॉक हो जाए, यानी कि क्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। अगर क्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्यू स्पिन लॉक। देन फास्ट म्यूटेक्स है, वही जो म्यूटेक्स आप यूजर में वाले में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इधर फास्ट म्यूटेक्स है। देन एग्जेक्टिव रिसोर्स लॉक है जो कि वन लॉक होल्डर इन द एग्जेक्टिव मोड, मैनी लॉक्स होल्डर इन द शेयर मोड, एंड गुड फॉर रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। ये मैंने आपको टॉपिक रीडर राइटर्स का नहीं पढ़ाया था, ये डाइनिंग फिलोसफर की प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स की प्रॉब्लम ये आती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के हवाले से। So thread synchronization, other synchronization tools also available. मैंने यहाँ पे already लिखा हुआ है कि I should skip this slide in order to complete the topic. तो आप इसको kindly, ये वही APIs हैं, आप सिर्फ इसको रीड ही करना है और सामने इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैंने भी रीड करके एक्सप्लेनेशन बतानी है, इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। देन थ्रेड शेड्यूलिंग, ये मैं चाहूंगा कि आई स्पेंड अ मिनट और 2 ऑन दिस। आपको मैंने बताई थी 3 स्टेट्स, रन स्टेट, रेडी स्टेट और ब्लॉक स्टेट्स, जो कि प्रोसेस की या थ्रेड की स्टेट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर विंडोज में जो विंडोज विस्टा के अंदर जो आपकी स्टेट्स हैं वो अगर आप देखें बड़ी मज़ेदार यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है, ये वाली ड्राइंग, और इसमें अगर आप देखेंगे ये स्टेट जो है पहले इनिशियलाइज होती है एट द टाइम द थ्रेड इज क्रिएटेड, देन थ्रेड गोज इनटू द रेडी स्टेट, रेडी से फिर ये जाता है स्टैंड बाय स्टेट के अंदर। स्टैंड बाय स्टेट जो है वो जस्ट रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये थ्रेड है ना, ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस होता तो डायरेक्ट रन में आ जाता। स्टैंड बाय का मतलब है कि बस अब पर तोड़ रहा है और इसके किसी भाई बहन को, किसी और थ्रेड को सीपीयू मिल गया फॉर द एग्जीक्यूशन, और जब इसको सीपीयू मिलेगा इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड देन इट विल रन अगेन। जब इसका टाइम क्वांटम जब या तो खत्म हो जाएगा तो इट विल टर्मिनेट, और अगर इसका टाइम क्वांटम लैप्स हो गया या इसको प्रीएम्प्ट कर दिया जबरदस्ती जो मैं आपको पढ़ाया था तो ये फिर दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा, और अगर स्टैंड बाय स्टेट से प्रीएम्प्ट हुआ तो फिर रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर ये रन स्टेट पे और इसने आईओ सिस्टम कॉल की तो वेटिंग स्टेट में जाएगा, और वेटिंग स्टेट से दोबारा ये जब आईओ इसका कंप्लीट हो जाएगा तो रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा। देन
ट्रांजिशन स्टेट ये है कि अगर आपको प्रोसेस को पेज ही आपका चला गया उस थ्रेड का, तो ये जनाब कहाँ चला जाएगा, डिस्क के ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसको पहले इंतजार करना पड़ेगा कि पहले मेमोरी में तो आए ना, फिर आकर रेडी स्टेट के अंदर compete करे फॉर डूइंग सर्टेन जॉब। और अगर इसके अलावा कोई स्टेट है तो उसको फिर ये कहते हैं जी अननोन स्टेट के अंदर चला गया, हमें नहीं पता वो कौन सी स्टेट है। सो वेरी इंटरेस्टिंग और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव और वेरी वेरी डिटेल्ड एंड एक्सप्लेन्ड। ओके, थ्रेड शेड्यूलिंग, विंडोज कर्नल डज नॉट हैव अ सर्टेन शेड्यूलिंग थ्रेड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इंस्टेड व्हेन अ थ्रेड कैन नॉट रन एनी मोर, तो उसके बाद थ्रेड एंटर्स इनटू द कर्नल मोड एंड कॉज जैसे कि सिस्टम कॉल करते हैं, कॉज इनटू द शेड्यूलर इटसेल्फ टू सी विच थ्रेड टू स्विच टू, अब किस थ्रेड को उसमें स्विच करना है। ठीक है, यहाँ भी एक मैंने आपको सिस्टम कॉल बताई थी जो वॉलंटरीली सरेंडर करता है सीपीयू को। अब आप खुद याद कीजिएगा कि वो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी। थ्रेड शेड्यूलिंग, अब the following conditions cause the currently runnable thread to execute the scheduler code, और वो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं ये भी आप काइंडली रीड आउट कर लीजिएगा। currently running thread block on semaphore, the thread signals on object and goes down blocked, then time quantum expire। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हो सकती हैं जिसमें कि थ्रेड शेड्यूलिंग कॉल होगी। द शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर टू अदर कंडीशन, जब आप आईओ कर रहे हैं या अ टाइम वेट एक्सपायर हो गया है, आपने टाइमर लगाया हुआ है कि जनाब इतने टाइम तक अगर वो मैसेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो फिर मुझे जगा दीजिएगा ताकि मैं मैसेज को रीट्रांसमिट कर सकूं। तो अगर कोई टाइमर लगाया हुआ और टाइमर एक्सपायर हो गया है तो तब भी आप शेड्यूलर की सर्विसेज चाहेंगे कि आपको सीपीयू एलोकेट किया जाए। आपसे मुराद प्रोसेस या थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब ये है थ्रेड शेड्यूलिंग के हवाले से प्रायोरिटीज हैं, और ये प्रायोरिटी जो है वेरी करती है बिटवीन 1 to 31, बिटवीन 1 to 31। ये प्रायोरिटीज जो हैं ये आपकी होती हैं, 5 बिट का कोड होता है और यहाँ पर आपकी प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो 1 से लेके 31 तक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज Win32 प्रोसेस क्लास प्रायोरिटीज, ये क्लासेस हैं, रियल टाइम का प्रोसेस है या थ्रेड है, हाई थ्रेड है, अबव नॉर्मल थ्रेड है, नॉर्मल थ्रेड है, बिलो नॉर्मल है या आइडल थ्रेड है। सिमिलरली अगर थ्रेड है, क्रिटिकल है, हाईएस्ट है ऑफ इंटरेस्ट, अबव नॉर्मल है, बिलो है, लोएस्ट है, आइडल है। सो दीज आर Win32 थ्रेड प्रायोरिटीज हैं और ये उसकी क्लासेस हैं। इन दोनों के दरमियान जब थ्रेड फर्ज किया अगर आपका अबव नॉर्मल थ्रेड जो है वो अबव नॉर्मल क्लास के अंदर है तो उसकी प्रायोरिटी 11 है, लेकिन अगर आपका अबव नॉर्मल थ्रेड जो है वो रियल टाइम में है तो उसकी प्रायोरिटी 25 है। इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। थ्रेड शेड्यूलिंग, ये देखेंगे यहाँ पर आपका थ्रेड जो है मेमोरी के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मौजूद है और कहाँ कहाँ पे आपकी क्यूज बनी हुई है, इसको ज़रा रीड आउट काइंड भी खुद कर लीजिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हेयर इज दैट के यू कैन सी दी बिटवीन 2 GB to 4 GB, ये सारा ही नहीं है, बट बिटवीन 2 GB to 4 GB देयर आर सर्टेन modules which are present into the memory of the computer, or whenever a process is created, for example we have created 3 processes A, B and C. So whenever a process is running and executing, तो what can be done with the process कि एक तो उसका प्रोसेस का मेमोरी के अंदर अपना वर्चुअल एड्रेस स्पेस है जो हर प्रोसेस का अपना प्राइवेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, और उसके साथ इस एड्रेस स्पेस को जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि नॉन पेज पूल है, पेज पूल है, ये पेज टेबल की बात हो रही है, एज पेज टेबल है, स्टैक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं, दीज आर ऑल लिंक्ड अप विद द प्रोसेस एंड बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यू विल रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। देन
इसमें कहते हैं कि बॉटम एंड टॉप के 64 किलोबाइट्स आर इंटेंशनली अनमैप्ड आर स्पेशली यूज्ड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। एक चंक यहाँ पर छोड़ दिया गया है और एक चंक यहाँ पर। बॉटम एंड टॉप 64 किलोबाइट्स आर इनवैलिड, और इसके बीच में ये एक सेफ्टी एरिया है, सेफ्टी मार्जिन्स हैं, बाउंड्री वॉल है जो कि डिफाइन की गई है। और बाय द वे अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि बाउंड्री वॉल का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है। आप भी रीड कीजिएगा, मैं भी आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। ओके 64 KB का आपका से लेकर किलोबाइट से लेके 2 GB तक जो है वो यूजर्स प्राइवेट कोड डेटा है, और ये मैंने प्राइवेट कोड डेटा यहाँ से यहाँ तक बताया। ओके और इसके बाद 2 GB से 4 GB रेस्ट 64 KB वो जो टॉप वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वर्चुअल मेमोरी दैट कंटेन्स द कोड डेटा पेज एंड व्हाटएवर नीडेड बाय द प्रोसेस, जो कि उसको अच्छा इसका एडवांटेज क्या है इसका ये तो बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ये डुप्लीकेट नहीं कर रहे। कहीं आप ये ना समझें कि ये हर प्रोसेस के साथ है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेमोरी मैनेजमेंट में कि ये शेयर्ड है। याद है ना वो जो टॉपिक मैंने मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ाया था, शेयर्ड लाइब्रेरीज, शेयर्ड पेजेस, और काफ़ी सारी डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये शेयर्ड है, मीन कि 1 कॉपी, एंड दिस 1 कॉपी जो है इज़ प्रेजेंट, और मैं भी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि मैप कैसे होती है उसके साथ। और ये वो सिस्टम कॉल्स हैं भाई, और वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन सिस्टम कॉल्स को सारे को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये वो है मैपिंग जो हो रही है यहाँ पर जनाब। आपका ये प्रोसेस 1 की एड्रेस स्पेस है, और ये प्रोसेस A की और ये प्रोसेस B की एड्रेस स्पेस है। ये प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूटेबल है एड्रेस स्पेस में, दिस इज प्रोसेस 2 एग्जीक्यूटेबल। फिर ये शेयर्ड फाइल्स है। अब देखें शेयर्ड फाइल को, ये शेयर्ड फाइल इस प्रोसेस पे इधर मैप हुई और ये इस प्रोसेस के लिए इधर मैप हो रही है। एग्जैक्ट इस लोकेशन पे मैप नहीं हुई। अगर आप इसको कहेंगे जनाब ये प्रिसाइज भी अगर एक ही एड्रेस पर से होती ना तो ये यहाँ पे मैप होती, नहीं, ये इस प्रोसेस के अंदर मैप होती है। और ये कैसे होती है ये मैंने बहुत तफसील से आपको पढ़ाया है जब मैं आपको शेयर्ड फाइल्स और उसके वर्चुअल एड्रेस के साथ मैपिंग सिखा रहा था और बता रहा था। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेटा को डायनेमिकली ग्रो करने के लिए, कहाँ गया कर्सर, ये रहा, डेटा को डायनेमिकली ग्रो करने के लिए हम बीच में होल देते हैं। स्टैक इधर ग्रो करता है ऊपर से नीचे, डेटा नीचे से ऊपर, तो ये हम एक होल प्रोवाइड करते हैं सो डैट कि प्रोसेस का जो डेटा है वो डायनेमिकली जो है वो ग्रो कर सके। और ये आपका बेक स्टोर है। जब अगर आपको प्रोसेस को जगह खाली करनी पड़ती है या आपको इसको स्वैप आउट करना पड़ता है, तो पेज आउट करना पड़ता है, तो फिर आप डिस्क के ऊपर ये सारे का सारा जो ड्रामा है ये क्रिएट करके रखा होता है सो डैट कि आप उसको डिस्क पे भी जाकर सेव करवें। ठीक, अगर तो आपको लेक्चर अच्छे तरीके से आपने सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो फिर जो कुछ मैं बड़ी तेज़ी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं इसी एजम्पशन पे कर रहा हूँ कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आपने बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया है, IO मैनेजमेंट भी आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया है, फाइल मैनेजमेंट भी आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे मैनेजमेंट्स जो हैं ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। इसलिए आज का लेक्चर जो है वो सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर चल रहा है भाई। ओके, पेज फॉल्ट इसको छोड़ दें भी। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस सारे को आप डिकोड करके और समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलें इसको छोड़ देते हैं, जब एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना तो फिर इसको दोबारा से पकड़ेंगे। पेज फॉल्ट हैंडलिंग जो है, अब ईच पेज फॉल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज बीइंग इन वन ऑफ द 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज के अंदर पेज फॉल्ट हो सकता है। पहली बात ये, द पेज रेफरेंस इज नॉट कमिटेड, मीन्स के प्रोग्राम की कोई एरर है और आपने एक ऐसे पेज को रेफर कर दिया है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एड्रेस स्पेस, और आपने एक फॉल्टी पेज फॉल्ट जो है वो जनरेट कर दिया है। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। Second is attempted access to a page in violation. आपने किसी पड़ोसी के घर छलांग लगाने की कोशिश की है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एरिया है उसको उसमें जंप लगाने की कोशिश की है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हाउस में घुसने की कोशिश की है आपने, कर्नल के एरिया के अंदर घुसने की कोशिश की है। ये फौजी कर्नल नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, ओके। तो दिस इज अ वायलेशन।
और दिस इज अ सिक्योरिटी वायलेशन, और आपका जो पेज फॉल्ट है इसमें भी एक फॉल्टी पेज फॉल्ट कंसिडर होगा। देन अ शेयर्ड कॉपी ऑन राइट पेज वाज अबाउट टू बी मॉडिफाइड। याद है कॉपी ऑन राइट? याद करें, कॉपी एंड राइट, एक पेज को जब आप शेयर कर रहे होते हैं तो शेयर कर रहे होते हैं बिटवीन द मोर देन वन प्रोसेसेस। लेकिन कॉपी एंड राइट ये होता है कि जब एक शेयर्ड पेज को आप मॉडिफाई करने जाने लगते हैं तो उसकी फिर एक डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं कॉपी ऑन राइट। ठीक है, और ये भी एक कैटेगरी नंबर 3 है। फिर स्टैक नीड्स टू ग्रो, वो जो मैंने बताया था कि स्टैक में ग्रो कर सकता है, भाई ग्रो वो तो स्पेस था। अगर अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बेसिकली पेज तो समझें यही है आपके पास, लेकिन जब वो ग्रो करेगा तो फिर यहाँ पे आपको एक और पेज देगा। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल एड्रेस स्पेस अभी यहाँ मेमोरी नहीं बनाई हुई, ठीक है, लेकिन आपको पता है। और फाइनल, जेन्युइन पेज फॉल्ट, the page reference is committed but not currently mapped in, this is called a genuine page fault. Page replacement algorithms, दिल तो करता है ये सारा कुछ फिर से पढ़ाना शुरू कर दूं, है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको आती हैं। वर्किंग सेट कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे जिसमें कि एक वर्किंग सेट मॉडल भी पढ़ाया था। तो जनाब आपका जो विंडोज़ है, विंडोज़ विस्टा जो है, ये वर्किंग सेट मॉडल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करता है और बहुत मज़े का यूज़ करता है। ईच प्रोसेस, नॉट ईच थ्रेड हैज़ अ वर्किंग सेट। ईच प्रोसेस नॉट अ ईच थ्रेड। देखें, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि प्रोसेस इज ए कंटेनर, और कंटेनर जो है वो आपका प्लेग्राउंड है, उसके अंदर कंटेन्ड रहना है आपने, और उसके अंदर जो आपका जो थ्रेड है वो विद इन दी कंटेनर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच प्रोसेस हैज अ वर्किंग सेट। देन ईच वर्किंग सेट हैज 2 पैरामीटर्स। विंडोज के हवाले से बात कर रहा हूं, ये मैंने उसमें नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन ये विंडोज विस्टा के हवाले से मिनिमम साइज which is 20 to 50 pages और maximum size which is 45 to 345 pages। मौजें लगी हुई हैं, जितनी मर्जी पेजेस यूज करें। Okay, every process starts with the same minimum and maximum, but these bonds can change over time. Okay, so page replacement algorithm क्या है? Working set only comes into play when physical memory is low. यानी कि खुली आशी है प्रोसेस की, जितने चाहे पेजेस यूज करते चले जाएं, वर्किंग सेट जो है वो आके आपके पेजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो सही पीछे पेजेस कितने दिए हुए हैं, 345 पेजेस। इतना बड़ा प्रोग्राम तो मैंने नहीं कभी जिंदगी में लिखा 30 साल IT प्रोफेशनल कैरियर में। ओके, तो इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम तो पूरे का पूरा मेमोरी में जाके एग्जीक्यूट होगा। सो व्हाट द सिस्टम डज के अगर तो वर्किंग सेट जो है वो गेट्स लो, तो ऐसी सूरत में फिर वो वर्किंग सेट का जो मिनिमम और मैक्सिमम है फिर वो इम्पोज करता है। और अगर वो वर्किंग सेट लो पे नहीं जाता तो फिर वो प्रोसेस जो है वर्किंग सेट में ग्रो और जनाब ये चलता रहता है, और ये मैक्सिमम लिमिट को भी बेशक क्रॉस कर जाए, आपको पेजेस मिलते जाते हैं और आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहें। लेकिन अगर ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्किंग सेट बहुत ज्यादा मेमोरी है तो खुले पेजेस मिलते जाएंगे, और जब इट गेट्स टाइट, ये रहा इट गेट्स टाइट। टाइट का मतलब है कि मजबूरी होगी भी, बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड द डिमांड ऑफ द मेमोरी हैज गॉन हाई, तो ऐसी सूरत में फिर वो कायदा कानून लागू हो जाएगा और फिर आपको वर्किंग सेट के हवाले से पेज मिलने के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ये है जनाब आपका फिजिकल मेमोरी की मैपिंग, ये आपके वर्किंग सेट के पेजेस हैं, और ये पेजेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली आप मेंटेन कर रहे हैं। व्हेनेवर पेज इज मॉडिफाइड इट इज मेंटेन्ड, अ लिस्ट इज मेंटेन्ड, and then the modified page has to be written back onto the disk। मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा, आई एम श्योर कि आपको सीक्वेंस पता होगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि जी वंस द मॉडिफाइड पेज इज रिटन बैक तो फिर वो डेट गोज इनटू अनदर लिस्ट विच इज कॉल्ड स्टैंड बाय लिस्ट। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ बताया कि पेज टेबल है, अवेलेबल है, थोड़ा सा जिक्र किया था कि पेज को रिलीज करने की बजाय, फ्री लिस्ट को देने की बजाय उसको स्टैंड बाय मोड के अंदर हम रखते हैं, ताकि जब पेज फॉल्ट अकर हो तो फिर इसको डिस्क से ना लाना पड़े, बल्कि इसको यहीं से वापस कर दें। एहतियातन ले लिया था पेज,
जरूरत फिर पड़ गई, वापस कर दिया, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट पेज फॉल्ट। ओके, और दूसरी सूरत में कि पेज प्रोसेस खत्म हो गया, पेज हैज बीन डीएलोकेटेड, अ न्यू प्रोसेस हैज कम्स इन एंड न्यू प्रोसेस इज रेफरिंग अ पेज, उसके लिए फ्री पेज चाहिए तो फ्री पेज उसको प्रोवाइड कर दे। देन देर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, मैंने नहीं बताया था आपको, जीरो पेज थ्रेड। एक बड़ा लो प्रायोरिटी का एक थ्रेड है जो एग्जीक्यूट होता है, जो वक्तन फक्तन उठ के सफाई करता है पेज के अंदर। सफाई कैसे करता है कि उसको जीरो कर देता है, और वो जीरो करने की क्या जरूरत है, यू कैन जस्ट ऑलवेज राइट इट डाउन ओवर इट। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी मेजर्स में कि कुछ ऐसे इंट्रूडर्स होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो उसको मेमोरी पेज आप देंगे ना काम करने के लिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर काम करे, उसको पढ़ना शुरू कर देगा वो प्रोसेस जो है। और फिर वो दूसरों का कोई अगर डेटा सेंसिटिव उसके अंदर है, किसी का पासवर्ड अगर उसके अंदर आ गया है, कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ गई है, आपके एटीएम कार्ड का नंबर आ गया है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो उसकी तो मौजें लग जाएंगी। तो इसके लिए विंडोज जो है सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड करता है। और सिक्योरिटी मेजर क्या है कि एक लो लेवल का थ्रेड है जो टाइम टू टाइम लाइव होता है और आके पेजेस की सफाई करता है, मीन्स उसको जीरो कर देता है। ठीक है भाई, मोर देन सफिशिएंट। फिजिकल मेमोरी मैनेजर, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। पेजेस रिमूव फ्रॉम अ वर्किंग सेट आर पुट ऑन आइदर, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन की है, ये सारी वही चीज है, बस मेरा ऑर्डर एक्सप्लेन करने का अपना होगा, यहाँ पे सीक्वेंस अपना होगा। ये सारे 8 के 8 स्टेप एक दफा पढ़ लीजिएगा, मैं आई एम श्योर कि मैंने 8 स्टेप जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। नेक्स्ट कम्स द इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट इन विस्टा आईओ सब सिस्टम। अब आईओ लेयर्स जो मैंने अभी रिसेंटली चंद लेक्चर्स पहले ही आपको पढ़ाई हैं, और मैंने आपको बताया था कि प्लग एंड प्ले भी होते हैं कुछ ड्राइवर्स आपके, और वो फैसिलिटेशन होती है। और विंडो के अंदर ये और बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर मैनेजर भी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ा सका था आपको। तो पावर मैनेजर क्या करता है कि पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करता है। एंड देन इनपुट आउटपुट मैनेजर है, देन डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारी हमारी वेल नोन चीजें हैं। प्लग एंड प्ले सर्विस क्या है? buses such as PCI, USB, extended IDE and SATA, ये हैं बसेस जिसके ऊपर आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और अगर ये बसेस के साथ आप प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को लगाएंगे तो फिर आपको आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्लग एंड प्ले मैनेजर जो है विल एलोकेट हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज इंटरप्ट लेवल्स एंड लोकेट्स द अप्रोप्रिएट ड्राइवर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो डिवाइस को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी डिवाइस है, फिर उसका ड्राइवर ढूंढेगा, फिर उसका ड्राइवर लेकर आएगा। फिर मैंने आपको बताया था इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, एंड दैट इंटरप्ट वेक्टर टेबल कंटेन्स द IRQ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर, उसका एक लेवल होता है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको आपको बताया था। तो वो इंटरप्ट के जो लेवल्स होते हैं वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड का असाइन करेंगे, एक प्रिंटर का असाइन करेंगे, एक माउस का असाइन करेंगे, और एक CPU को भी इंटरप्ट असाइन करते हैं, तो वो हाईएस्ट होगा इंटरप्ट, जो कि सबसे पहले मेमोरी का इंटरप्ट है। ठीक है ना, तो हर डिवाइसेस के साथ आपको एक इंटरप्ट नंबर एसोसिएट करना होता है, और इतना ही काफ़ी है। पावर मैनेजर, ये क्योंकि पढ़ाया नहीं था तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। The power manager adjusts the power state of the IO device to reduce system power consumption when the devices are not used. Indirectly तो मैंने शायद पहले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा दी थी, फ्लॉपी डिस्क की एग्जांपल देते हुए कि क्या फ्लॉपी की पावर को ऑन रखना है या नहीं रखना। लेकिन यहाँ पे ये है कि पावर को सेव करने के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि द डिवाइस इज नॉट बीइंग यूज्ड तो उसकी पावर को ऑफ कर देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन लैपटॉप्स आर ऑन देयर बैटरी। ठीक है ना, आपके आउटलेट की बजाय बैटरी के ऊपर लैपटॉप चल रहा हो। सो 2 स्पेशल मोड्स ऑफ पावर सेविंग, हाइबरनेशन एंड स्टैंड बाय मोड। ये दोनों मोड मैंने भी थोड़ी देर पहले आई हैव डिस्कस्ड इट। आई एम श्योर कि आपको पता है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। वंस अगेन वेरी क्विकली इसको मैं छोड़ता हूं और आप जस्ट रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। ये आपकी सिस्टम कॉल्स हैं और ये इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं सारी की सारी। ओके, डिवाइस ड्राइवर्स। All drivers must conform to WDM. WDM क्या है? Windows Driver Model. That basically the standards for the compatibility reasons with the older Windows version. Okay. So devices, the windows are represented by device object.
devices in Windows, okay, which are used to represent hardware such as buses and software abstractions, जो कि मैंने आपको बताया था, फाइल हो गया, नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया, और उसके बाद और बहुत सारे abstractions जो हैं टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ। और ये तो आपको याद ही होगा, ये वाली जो तस्वीर है, डायग्राम है, ये तो मैंने यूज़ की है IO मैनेजमेंट के अंदर, ठीक, और मैंने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ाया भी था आपको। विंडोज और ड्राइवर टू बी स्टैक्ड to work with a specific instance of the device, the stacking is represented by device objects। ये कोई अंग्रेजी ऐसी लिखी हुई है, लेकिन है वही चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई थी। स्टैक क्या कहते हैं? लेयर्स हैं। अगर बहुत सारी लेयर्स हैं तो हर लेयर की एक पोजीशन है, और अगर वो लेयर अपनी पोजीशन के अंदर है तो हम उसको कहते हैं स्टैक। जैसे कि अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर TCP/IP स्टैक पढ़ेंगे, या आप और रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम उसको बेसिकली होता है क्या है कि डिफरेंट लेयर्स की एक सीक्वेंस, उनकी पोजीशनिंग, इसको हम स्टैक कहते हैं। ड्राइवर में डू दी वर्क बाय इटसेल्फ लाइक अ प्रिंटर ड्राइवर। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट्स move forward। फाइल सिस्टम, 3 ड्राइवर लेयर्स हैं फाइल सिस्टम की, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम ड्राइवर। वॉल्यूम ड्राइवर तो आप खुद समझ में कि वॉल्यूम को ड्राइव करती हैं, मीन्स डिवाइस को ड्राइव करती हैं, मीन्स आपकी स्टोरेज हार्डवेयर को डील करते हैं वॉल्यूम ड्राइवर्स। नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम ड्राइवर्स। अब आपका फाइल सिस्टम जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं? आप एंटी फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप FAT16 यूज कर रहे हैं, FAT32 यूज कर रहे हैं। इन सबको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये डिफरेंट फाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इनका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया मैंने, एटलीस्ट आपको ये मुझे याद है कि किस फाइल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। फाइल सिस्टम फिल्टर ड्राइवर दैट परफॉर्म्स हाई लेवल फंक्शंस। ये फिल्टर ड्राइवर्स हैं, और फिल्टर ड्राइवर क्या, आपके डेटा को फिल्टर करते हैं, उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि जनाब कहाँ कहाँ पे वायरस जो है ना वो आ गया, उसको फिल्टर करना है। आपका एक्चुअल डेटा कौन सा है और जो बाद में आके चिपक के बैठा है वो उसको आप फिल्टर आउट करें ताकि वायरस को आपकी फाइल से अलग किया जाए। देन इंक्रिप्शन, फाइल्स को इंक्रिप्ट किया जाता है तो वो भी एक तरह से है, लेकिन ये लेजिटिमेट है इंक्रिप्शन जो है, और ये जनाब illegitimate or illegal or immoral है viruses भी। they are facts of life, so basically you need to have these drivers, filter drivers available. Then typical disk IO, user mode thread passes file handler to the object manager। आप यूजर आपने एक फाइल को ओपन करना है तो आप क्या सीक्वेंस अडॉप्ट करेंगे? ये सॉरी यहाँ से चलते हैं। यूजर ने जनाब दिया रिक्वेस्ट किसको? ऑब्जेक्ट मैनेजर को। देन ऑब्जेक्ट मैनेजर फाइल पॉइंटर पासेस टू द फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम को पास ऑन करेगा। देन इट इवेंचुअली रिक्वेस्ट गोज टू द डिस्क, और देन डिस्क परफॉर्म द ऑपरेशन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने आपको IO मैनेजमेंट में एक्सप्लेन भी किया था। विंडोज एंटी फाइल सिस्टम है, और जनाब विंडोज एंटी फाइल सिस्टम मोर सिक्योर देन फाइल एलोकेशन टेबल, क्योंकि इस बाद में लेटेस्ट है, प्रोफेशनल है। ये भी प्रोफेशनल था अपने वक्त में, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई हैं। सो स्केल्स वेल टू लार्ज डिस्क, और क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास 32 बिट और 16 बिट के ही रजिस्टर होते थे, तो जाहिर है कि हमारी पार्टीशन का साइज़ भी छोटा होता था, और उसको हैंडल करना जो है वो भी उसके लिए छोटे टेबल्स बनाए जाते थे। 64 बिट फाइल पॉइंटर्स बाद में आ गए, तो वो उसकी मदद से हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए। मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स हैं एंड कंप्रेशन एंड, ये नहीं पढ़ाया बच्चों मैंने आपको। ये कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन, ये चैप्टर नंबर 9 है जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज़। ये मैं शायद स्किप कर गया हूँ, शायद नहीं, यकीनन मैं नहीं पढ़ा सका। ये आपके लिए एक बड़े मज़े की स्लाइड है, इसको ज़रा आप खुद ही पढ़ना। ये इसमें आपको पता चलेगा किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पीटा है, एक्सा है, जीटा है, याटा है। ठीक है, ये 2 टू दी पावर के साथ है। मैंने कहा था 2⁻60 जो है ना, बस ये बहुत है। ठीक, बल्कि 2⁻64 के हवाले से जब हमने बात की थी, तो इसका फिर इसका आपस में रिलेशनशिप देख लेंगे कैसे होता है। इसे फिर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को बस काफ़ी हो गया मेरा ख्याल, आगे चलते हैं।
मास्टर बूट NTFS मास्टर फाइल टेबल, चलिए इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा काइंडली से। एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन दी मास्टर फाइल टेबल रिकॉर्ड्स। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी, इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सिक्योरिटी डिजाइन ऑफ NT। सो वी हैव अ सिक्योर लॉगिन, ये वो चीजें जो नहीं पढ़ा सका मैं आपको। सिक्योर लॉगिन विद एंटी स्पूफिंग मेजर्स प्रिवेंट्स लॉगिन स्क्रीन्स टू बी इमिटेटेड। ये क्या है कि कोई ऐसा शैतान प्रोग्राम लिखता है कि आपको कहता है कि जनाब अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है ना उसको रीसेट करवें क्योंकि ये हैक हो गया है, और अब वो आपका हैक करता है, आपको एक सिमिलर लॉगिन पासवर्ड वाली स्क्रीन देता है और उसको आपको शो ये करता है कि आप लॉग आउट हो गए। आप उसके अंदर अपना लॉगिन एंटर करते हैं, जब वो आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका लॉगिन एंड पासवर्ड हैक हो जाता है। तो विंडोज़ ये काम करता है कि ये इस तरह की स्क्रीन को डिस्प्ले नहीं करने देता, ताकि वो थोड़ा सा अगर कोई बेवकूफ़ बना के आपका यूज़र नेम पासवर्ड लेना चाहता है तो उससे आपको बचाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स, ओनर हैज़ द राइट्स। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था रीड राइट एग्जीक्यूट फाइल सिस्टम के हवाले से, और अब टाइम नहीं है इसको फर्दर पढ़ाने का। प्रिविलेज्ड एक्सेस कंट्रोल, ये भी आप जिसके साथ चाहें आप उसको एक्सेस कंट्रोल असाइन कर सकते हैं, अपने फाइल को, पार्टीशन को, डायरेक्टरी को और डिस्क को। एड्रेस स्पेस प्रोटेक्शन पर प्रोसेस न्यू पेजेस मस्ट बी जीरोड, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको कि वो जो आपके जो नए पेजेस हैं उनको ज़ीरो कर दें, ताकि जब आपको कोई लेजिटिमेट यूज़र भी जिसको पेज एलोकेट हो वो मेमोरी से रीड करके अपने अड़ोस पड़ोस के यूज़र्स जो हैं उनके डेटा को ना पढ़ता रहे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मैंने पाइप्स का जिक्र किया था बड़े अच्छी तरह से, शायद आपको नहीं, इनको हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में या उसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में पाइप्स पढ़े थे। देन हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो पढ़ी है, यहाँ पर हम पाइप्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर प्रोसेसेस। देन मेल स्लॉट्स हैं, ये मैंने आपको इनडायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ मैसेज क्यूज के वजह से, और मैंने आपको बताया था एक टेक्निक पढ़ाई थी जिसको मैंने कहा था गांधेवू, ओके। और शेयर्ड मेमोरी तो मैंने बहुत ही तफसील से पढ़ाई। तो बेसिकली आपका जो विंडो विस्टा है वो तमाम चीज़ों को यूज़ करता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दीज आर टू पैराडाइम्स ऑफ द डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दो पैराडाइम्स हैं। एक को कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड, आपकी फोर्ट्रान 4 जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, इवन सी लैंग्वेज भी आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन सी की खासियत ये है कि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो दीज आर द टू पैराडाइम्स एंड बोथ द पैराडाइम्स आर सपोर्टेड एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। पाइप्स, अब पाइप्स की टाइप है, पाइप सर्वर पाइप्स है, क्लाइंट पाइप्स है, मोड्स हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया ये, और इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा प्लीज़। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेल स्लॉट्स की मदद से, ये मैंने इनडायरेक्टली पढ़ाया हुआ है टॉपिक आपको, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है ना उसको जाके दोबारा पढ़ें, दोबारा सुने, और ये वही चीज़ें हैं सारी की सारी। सिर्फ मैंने मेल स्लॉट्स का टर्म यूज़ नहीं की थी, बल्कि मैंने मेल बॉक्स की टर्म यूज़ की थी, ठीक है, जो कि आपकी बुक में दी हुई है। सो विद दिस आई गेस देयर आर सम अदर फीचर्स, let me take one more minute before I finish. Cookies management, certificates, trusted internet zones, automatic updates, these are all the features that have been provided not only in Windows Vista बट विंडोज़ NT और विंडोज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो क्लाइंट का प्लेटफॉर्म है और चाहे वो सर्वर का प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑलमोस्ट दीज फीचर्स आर अवेलेबल। सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी कि अगर आज मैं बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन किया है, बट विद द अजम्पशन कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे आते हैं तो आज का लेक्चर इसी स्पीड में आपको सुनना चाहिए जिस स्पीड में मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मेरी स्पीड के साथ आप ना चल सके तो काइंडली अपने
प्लेयर जो है, लेक्चर का जो प्लेयर है जिस पे आप सुन रहे हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करवें ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको एक इसी तरह का फास्ट रन थ्रू दूंगा, आइदर यूनिक्स और लिनक्स, और फिर एक आध लेक्चर और होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज, अजानी के बाद।